اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کا میزبان سید مبشر عباس موسوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کرام کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں۔ اس کے بعد جہاں کہیں سے بھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں خداوند متعال آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جیسا کہ جانتے ہیں مسجد جمکران میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج واقعاً بہت عرصے بعد ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں۔ جیسا کہ جانتے ہیں کچھ مشکلات تھیں جس کی وجہ سے ہم مسلسل آپ کی خدمت میں آ نہیں سکے۔ یہ سب آپ کی دعاؤں کا اور تعاون کا نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دوبارہ سے آپ کی خدمت میں آئے ہیں۔ سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کرام کو ولادت باسعادت منجی عالم بشریت خاتم نبوت خاتم امامت خلیفۃ الرحمن شریک القرآن امام انس والجان امام عصر والزمان عجل اللہ تعالی فرج شریف کی ولادت کی مناسبت سے آپ تمام ناظرین کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد خداوند متعال کی طرف سے جو وعدہ ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ میں اپنا وعدہ پورا کروں گا کہ مہدی کو بھیجوں گا۔ جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آتے ہیں تو اس وقت ان کی والدہ پریشان ہوتی ہیں کہ دشمن جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتی ہے، تو اس وقت وحی الہی نازل ہوتی ہے اور وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ گھبراؤ نہیں، ڈرو مت، آپ اس کو دودھ پلاؤ، اور اگر اس کی جان کا زیادہ خطرہ ہو تو اس کو کسی صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈالاؤ۔ واقعی یہ بہت سخت ہے کسی ماں کے لیے کہ اس کا ایک نوزاد بچہ جو ہے، نومولود بچہ جو ہے وہ ابھی دنیا میں آیا ہو اور اس کو دریا میں ڈال دیا، بہت سخت ہے۔ لیکن خداوند متعال نے اپنا وعدہ پورا کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واپس پلٹایا، رسول بنا کر واپس پلٹایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بھیجا، وہیں پر ان کی پرورش ہوئی اور واپس آئے، رسول بن کر واپس آئے۔ تو خداوند متعال کی طرف سے جتنے قطعی وعدے ہیں ان میں سے ایک قطعی وعدہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں مہدی کو ضرور بھیجوں گا۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی وہ فرماتے ہیں کہ آپ تم سب کو میں ایک خوشخبری دینے والا ہوں کہ مہدی ضرور آئے گا، اور خداوند متعال کی طرف سے جو وعدہ ہیں ان میں سے یہ وعدہ ہے، اور ہم جو منتظرین امام علیہ السلام ہیں امام کا جو ہے انتظار کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، آیا ہم واقعی منتظرین میں سے ہیں یا نہیں ہیں۔ انشاءاللہ ان تمام پر آج گفتگو کریں گے، کسی تعریف کے محتاج نہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین سید اشتیاق حسین کاظمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سب سے پہلے وبرکاتہ۔ تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں، اور جیسا کہ جانتے ہیں کہ کل جو تھی ولادت بسعادت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف، تو اسی مناسبت سے آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ میں بھی آپ کو خصوصاً آج کے دن کی مناسبت سے اور ناظرین کو اس ولادت منجی عالم آفتاب عدالت کی مناسبت سے تبریک عرض کرتا ہوں۔ سلامت رہیں، بہت بہت شکریہ۔ چلو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، کیونکہ جب دیکھیں ولادت ہوتی ہے امام علیہ السلام کسی بھی ائمہ کی، جی، تو اس وقت اس ائمہ کے حوالے سے بہت زیادہ گفتگو ہوتی ہے، جی، لیکن جب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے حوالے سے جب ان کی ولادت ہوئی، ان کے بعد وہ پردہ غیب میں چلے گئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس پر بہت زیادہ خود ہمارے شیعوں کے اندر مومنی کے درمیان بہت زیادہ گفتگو ہے، بحث و مباحثہ ہے، ظہور ہے یا ولادت ہے۔ بعض لوگ اس کو ظہور بھی کہتے ہیں۔ آیا ظہور کہنے سے کوئی اشکال ہے؟ اس حوالے سے ناظرین کو روشن ڈالیے۔
औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो इब्तिदा से लेकर आज तक इसमें दो पहलू हैं। अगर हम विलादत को छोड़कर ज़हूर की तरफ आते हैं, उसमें एक पहलू है मुस्बत और दूसरा है मनफी। जो मनफी पहलू हैं उसके फिर असरात ज़्यादा हैं, जिनका फ़ायदा दुश्मन उठा रहे हैं, और जो मुस्बत पहलू है उसके ऊपर तो हम बात करते भी नहीं है ना, दुरुस्त, बस ज़हूर हो गया। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। अभी जो लोग कहते हैं कि ज़हूर हुआ है, विलादत नहीं हुई, जी उसकी एक वजह तो ये है कि जो पैरवी है, सिलसिला पैरवी है, या उनकी ज़िंदगी जो अहले बैत की ज़िंदगी है, जी जी, वो हमारे लिए नमूना है, बेशक ये एक उसवा हसना है। बेशक बेशक, तो पैरवी से खारिज हो जाएंगे। सही, एक नुक्ता ये। दुरुस्त, दूसरा क्या है, जब पैरवी से खारिज हो गए तो फिर जो इताअत है, जी जो उलुल अम्र की, बिल्कुल ऐसे ही। फिर वो इताअत से भी खारिज हो जाएंगे। अल्लाह अकबर, जब इताअत से खारिज हो गए तो फिर क्या होगा, ना हलाल हराम की तशख़ीस रहेगी, बिल्कुल ऐसे ही, और ना जायज़ और नाजायज़ भी मिट जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही। और हक और बातिल की वो भी तशख़ीस नहीं रहेगी कि हक कहाँ है और बातिल कहाँ। यानी फ़र्क जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। फ़र्क बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, उसको हम तशख़ीस नहीं दे सकते जी, कि ये मकसद क्या है और इनका मतलब क्या है। इसका फ़ायदा ज़्यादातर जो उठा रहे हैं वो यहूद उठा रहे हैं, अल्लाह अकबर, जो इस वक्त पूरी दुनिया की मार्केट में छाए हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मसलन सकाफत के लिहाज से देखें आप, जी सियासत के लिहाज से देखें आप, जी, और उसके बाद और भी अमूर जितने भी हैं, हम खुश हो जाते हैं सही, कि इस चीज़ पर जो स्टैंप लगा हुआ है सही। वो हलाल का है, बिल्कुल ऐसे ही। चाहे वो बातिल में खंजीर की चर्बी क्यों ना हो। हम उस स्टैंप को देख रहे हैं क्योंकि हम उस तरफ से हट गए। जी जी, जब आपने ज़हूर कह दिया दुरुस्त, तो फिर हम पैरवी से हट गए, बिल्कुल ऐसे ही, उनको उल्गू करार देने से हम हट गए। दुरुस्त, जब हम हट गए तो फिर यहूद ने ये फ़ायदा उठाया। बिल्कुल ऐसे। अभी रही बात ये, इस वक्त पूरी मार्केट दुनिया में जो मुनाफाखोर हैं जी, यही कुफार और इस्तेमार है, सही, और इस्तेमार चाहता भी यही है बिल्कुल ऐसे। कि जिस हस्ती ने, जिनकी विलादत हुई, या जिस हस्ती ने भी आके तागूत की हुकूमत का खात्मा करना है दुरुस्त, और पूरी दुनिया में जुल्म को ख़त्म करके सही, एक अदालत पर मबनी हुकूमत को कायम करना है, तो वो खुश हो जाएंगे। जब हमने कहा कि ज़हूर हो गया सही, तो विलादत का जो पहलू है वो खत्म नफी शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही, उसमें रिश्तेदारी, दुरुस्त है। उसमें विरासत। अभी ये फिरा का बेटा है, हम कहते हैं ना कि हजरत अली इब्न अबी तालिब, अलैहिस्सलाम, जब ज़हूर हुआ तो फिर ये बेटे वाला रिश्ता कहाँ से आ खत्म गया। हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही। जी, वो या मसा और रहमा है, जी मसा हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम, जी, उधर से हम कह रहे हैं कि मौलूद है, यानी मौलूद काबा है हजरत अमीरुल अली मोमिनीन, इब्न अबी तालिब, उनकी विलादत हुई काबा में, जी जी, और उधर से हम कह रहे हैं ज़हूर हो रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बिल्कुल ऐसे, देखिए, ज़हूर जो है ना वो गैबत के मुकाबले में है, दुरुस्त है, और विलादत शहादत के मुकाबले में है। दुरुस्त है। अगर आज हम कहते हैं कि हजरत इमाम ज़माना का ज़हूर हुआ, यानी 15 शाबान 255 हिजरी में जी, हजरत इमाम महदी का ज़हूर हुआ है, तो कहाँ हुआ है? वो कहाँ हुआ? जी बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, क्योंकि हजरत इमाम महदी जल्लल्लाहु फरजहु शरीफ इस वक्त पर्दा गैबत में है। बेशक बेशक, जब पर्दा गैबत में है तो उनका ज़हूर कहाँ से हुआ? दुरुस्त है, मतलब पाकिस्तान के किसी शहर से हुआ, या मतलब किसी और मुल्क से हुआ ना। असल बात यह कि उनकी विलादत हुई, हम आमद कह सकते हैं। दुरुस्त है, देखिए, आमद कह सकते हैं। अगर हम कहेंगे कि ज़हूर हुआ है जी, तो फिर विरासत ख़त्म, क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जी, कि मेरे बाद मेरे 12
जानशीन आएंगे। जानशी होंगे, सही। जिनमें से 12वां इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। उनका नाम मेरा नाम होगा, यानी मोहम्मद, और वो कायम करेंगे, बेशक बेशक, क़याम करेंगे, बिल्कुल जुल्म का खात्मा करेंगे, सही, फसाद का खात्मा करेंगे, जी जी, और पूरी दुनिया को अदल से मुनव्वर कर देंगे। सुभान अल्लाह, वो है बेशक, आफ्ताब अदालत। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, तो दुश्मनों को, इस्तेमार को खतरा बढ़ गया। सही, वो इस चीज़ में खुश हैं कि हम अपने ही ज़हूर उनको करार दें। दुरुस्त है। और दुश्मन तकरीबन इस मकसद में कामयाब भी हो गया। आप देखते हैं कि खुसूसन एशिया की तरफ, मतलब पाकिस्तान, जी, हिंदुस्तान, बिल्कुल। आप अगर ईरान इराक की तरफ देखते हो शायद इस कदर ज़्यादा ये ऐसी बातें ना हो, लेकिन पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश वगैरह इस तरफ देखते हैं तो बहुत ज़्यादा इस हवाले से मोमिनीन जो है वो आपस में इस पे बहुत ज़्यादा बहस व मुबाहिसा है। बाज़ कहते हैं ज़ुहूर है, बाज़ कहते हैं ज़ुहूर नहीं है, विलादत है। बिल्कुल। बाज़ मकाम में तो ऐसा है कि मोमिनीन हमारे ये कहते हैं कि नज़ूल हुआ, जी, बाज़ नुज़ूल भी कहते हैं, जिस बिल्कुल। तरह कुरान करीम नाजिल हुआ है, जी, 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 जी। इसी तरह ये भी नाजिल हुए हैं। जी, देखें, या तो हम में अक्ल ज़्यादा आ गई है, जी, या फिर जो हमारे बुजुर्गान थे वो जो जश्न विलादत मनाते आ रहे हैं और आए थे जी, जी, कई साल पहले ही, तो अखीरन ये लफ्ज़ ज़हूर शुरू हुआ है ना। बिल्कुल ऐसे ही। मैं मदद चाहिए, कॉलर है हमारे साथ, कॉलर को ले लेते हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सर, जिनका में तमाम से दुआ सर। जी जी, कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। जी, बिस्मिल्लाह। आप सक्खर से बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान सक्खर से बात कर रहा हूँ। जी जी, बिस्मिल्लाह। मौलाना साहब भी मौजूद हैं, हम मस्जिद जमकरान में मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तमाम से दुआ कराना चाहता हूँ अपने हक में, जी जी, मैं ज़रूर, आगा साहब मौजूद हैं इंशाल्लाह। अपने बच्चों के हक में। जी जी, ज़रूर ज़रूर, मैं इंशाल्लाह आगा साहब से अभी दुआ कराते हैं, अभी दुआ कराते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। जी, सक्खर से थे और इनके हक़ में कह रहे थे दुआ करें, इनके बच्चों के हक़ में दुआ करें, क्योंकि आप जानते हैं मस्जिद जमकरान में हम मौजूद हैं और ऐसा हो नहीं सकता कि कोई दुआ यहाँ से हो और वो रद्द हो। तो मोमिन ने फ़ोन किया है, परवरदिगार आज के आप दिन का सुनिए, सदका, दुआ सुनिएगा। परवरदिगार आज के दिन का सदका इनको सिहत व सलामती अता करे, इनके इलाही तमाम आमीन। मुश्किलात को दूर करे। इलाही आमीन। और परवरदिगार से दुआ गो हैं कि खालिक कायनात हमें मुंजी आलम ये हमारा आखिरी जश्न हो, फिर जो हमारा जश्न हो वो दीदार इमाम ज़माना हो। इलाही आमीन, इलाही आमीन। बहुत हम ये दुआ कर सकते हैं जी, कि बहुत परवरदिगार उनका दीदार हमारे नसीब फरमाए इलाही आमीन। और हमें सही माने सच्चा उनका सरबाज बनाए। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह कॉल करते रहिएगा, मैसेज अगर करना चाहते हैं मैसेज कीजिएगा, नंबर आपके स्क्रीन में मौजूद है। क्योंकि जानते हैं मस्जिद जमकरान में हम मौजूद हैं और शाबान वो महीना है जिसमें बहुत सी रिवायात इस हवाले से, इसकी फजीलत के हवाले से है। आगा साहब यहाँ मौजूद हैं, इंशाल्लाह दुआ के लिए कॉल करें। कोई सवाल अगर शरई सवाल है, इमाम ज़माना अज्जलल्लाह ताला फरज शरीफ के हवाले से कोई सवाल है तो वो भी आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह नंबर जो है आपके स्क्रीन पर मौजूद है, कॉल कीजिए। जी, ज़ुहूर और बाज़ नुज़ूल के हवाले से भी कह रहे थे। जी, असल में विलादत के बारे में अगर हम कहते हैं कि आजकल हम में ज़्यादा अक्ल आ गई है, जी या जो हमारे बुजुर्गान थे, जी, जो हमारे अजदाद थे, वो तो जश्न विलादत मनाते आ रहे बिल्कुल हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही है ना, दुरुस्त। क्योंकि जो भी हमारे बुजुर्गों ने जश्न मनाया है, हमें याद है, हम छोटे थे जब मसलन 13 रजब होती थी तो हमारे बुजुर्गान जश्न लेते थे। जी, लेकिन विलादत अमीरुल मोमिनीन मौलूद काबा, इसी तरह से जश्न 15 शबान को जो है जश्न होता है, पाकिस्तान में भी होता है, सुभान अल्लाह, मुख्तलिफ सुभान ममालिक में होता है, ऑल कंट्री होता है, बिल्कुल बल्कि ऐसे ही। जहाँ पे मुस्लिम आबाद हैं वो सारे जश्न मनाते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर भी आप देखते हैं कि किस तरह से जी, बिल्कुल। जश्न मनाया जाता है और 14 की रात को जिस तरह से मज़े मशी की और जाती बड़े है, काफी अच्छे अंदाज में, बिल्कुल, जिस बड़े तरह से मजबूत तरीके से और अच्छे मनाया जाता अंदाज है। में मनाया जा रहा जिस है। तरह इराक के अंदर करबला में जिस तरह मशी होती है, इसी तरह 15 शाबान को यहाँ जी, पर बिल्कुल। बैनुल हरमैन के दरमियान हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की जो हरम है और ख़ुद मस्जिद जमकरान के दरमियान जो रास्ता है उसमें मशी की जाती है, यानी इस तरह से मनाया जाता है, कोई इख्तलाफ नहीं है यहाँ पर। और मैं यहाँ पे मोमिनीन को, नाजरीन इकराम को, जो भी हैं यहाँ पे हमारे मुसलमान भाई जो भी हमारे इस बरनामे को देख रहे हैं, उनसे मैं अर्ज़ ये करूँगा कि मसलन हरमैन और यानी बैन हरमैन यानी हरम हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा और मस्जिद जमकरान,
इनके दरमियान ये जो अयाम होते हैं ना, ये काफ़ी यानी सवाब हासिल करने के, इबादत करने के और किसी की खिदमत करने के ये अयाम है। बिल्कुल इन ऐसे ही। अयाम में ज़्यादातर सदका देना क्या बात। और राय खुदा में खर्च करना सुभान अल्लाह। और हज़रत इमाम मेहदी की नियाबत में सुभान सदका देना उनकी सलामती के लिए, बेशक, बेशक। या उनको हदिया पेश करना, कोई कुरान की तिलावत करना, सुभान अल्लाह, सुभान या इस किस्म का जिक्र करना, तस्बीह का जिक्र करना। इसी तरह से है मौक़िफ़ के बारे में, जी जी, मतलब मौक़िफ़ लगाना सुभान अल्लाह। और ख़िदमत करना जो ज़ायरीन हज़रत इमाम ज़माना हैं जल्लल्लाहु या ताला। मस्जिद जमकरान के ज़ायरीन हैं, जो हज़रत मज़ूमा के ज़ायरीन हैं, सुभान अल्लाह। इस रास्ते में जो भी खर्च करेगा, सुभान जिस तरह मसा इराकी हमारे जी, जी। मोमिन हैं, करबला में देखे वो बिल्कुल। करबला में कैसा 80 किलोमीटर सुभान पूरा अल्लाह। कैसा बंदोबस्त करते हैं, क्या बात है, बल्कि क्या- हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि आइए जी हमारे घर में बिल्कुल ऐसे ही, सकन मौजूद है, रिहाइश मौजूद है, बिल्कुल ऐसे ही। सब कुछ है और ताम करें, सुभान खुदा के अल्लाह। लिए इससे इस्तेमाल करें। सुभान। और बड़े बड़े यानी मसला वजीर बड़े बड़े ओहदे वाले सुभान। सियासतदान सुभान। हमारे जूते साफ करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। ऐसी खिदमत का अगर जज्बा और अंगेजा हम में पैदा हो जाए, सुभान और अल्लाह। अगर हरम में हजरत मासूमा से लेकर सल्लल्लाहु अलैहि। मस्जिद जमकरान तक मौक़िफ़ लगाएं सुभान अल्लाह, सुभान। और इस रास्ते में खर्च करें, सुभान तो अल्लाह। इसका अजर जो है ना वो बिल्कुल काफ़ी अच्छा होगा। क्या बात है, क्या बात मुमकिन है इसी अजर के बदले में परवरदिगार हमें हजरत इमाम मुंजी ज़माना। आलम की ज़ियारत भी नसीब इलाही कर दे। आमीन, इलाही आमीन। मैं यहाँ पर एक बात थोड़ा सा ऐड कर दूँ, माशाल्लाह बेहतरीन आपने बयान किया। ये तो आपने बताया क्योंकि हम ईरान में हैं, इस वजह से हम ये कर सकते हैं। जी बिल्कुल। मेरे जो मतलब नाजरीन जो हमारे मुख्तलिफ ममालिक में हैं, अगर वो करना चाहें तो किस तरह से वो इसका अहतमाम कर सकते हैं? मतलब दोस्तों को दावत दें घर में, या क्या करें कोई ऐसा जिससे सवाब उनको हासिल हो? मसलन दोस्तों को दावत है, ज़्यादातर जो जिक्र हुआ है रिवायात में इस महीने में सलवात के बारे में जिक्र हुआ है। सुभान अल्लाह। मसला उसके बाद मसला सूरह इखलास के बारे में ज़्यादा जिक्र हुआ है, सुभान अल्लाह। सदका देने के बारे में जिक्र हुआ है। जी जी, को जो मोमिनीन हमारे जिस दुनिया के जिस कोने में भी आबाद हैं, जी जी, अगर वो खिदमत खाल्क करना चाहते हैं, लेकिन उस खिदमत खाल्क में रज़ायत इलाही हो, अल्लाह अकबर। ये शर्त है। दिखावा ना हो, दिखावा ना हो, रियाकारी ना हो, ना हो, बिल्कुल ऐसे। वगरना कोई फायदा नहीं है। दुरुस्त। उसमें जो मुस्तहिकीन हैं, अल्लाह अकबर। मसला उनके लिए ताम तैयार करे, सुभान अल्लाह, सुभान उनको दावत दे दे। अल्लाह, सुभान अल्लाह, या अगर कोई इमामजादा या कोई वली, सुभान अल्लाह। अगर उसका मकबरा है, कोई रोजा दरबार है है अगर मसलन, या बारगाह है, सुभान अल्लाह। तो उसमें क्या करें, एक मशीन को नियाज़ करार देखें। दें, क्या बात है, एक बुनियाद रखें, उसका एहतमाम करें सुभान अल्लाह। और खिदमत करें, इस रास्ते में खर्च करें, तो इसका अजर भी कोई काम नहीं है। बेशक बेशक, ज़बरदस्त माशाल्लाह। आपने अभी जब हम गुफ्तगू कर रहे थे जिसमें आपने फरमाया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद मेरे 12 जो है वो जानशीन होंगे। जी। यहाँ पर सवाल ये है कि जो आइम्मा अलैहिस्सलाम के चाहने वाले हैं, जो उनके दोस्त हैं, ख़ुद इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रज शरीफ की विलादत से पहले वो कौन लोग थे जो इमाम का इंतज़ार कर रहे थे? इसमें यह है कि क्योंकि उस वक्त मोमिनीन कम थे, और जो कम थे लेकिन मोमिनीन में इंतज़ार करने वाले दूसरों की निस्बत जी। जो दुश्मन थे सही। उस वक्त के जो तागूत, सही, वो ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि आप देखें, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में फ़िरऔन को, जी, तागूत वक्त को बिल्कुल ऐसे ही। जब बताया गया कि एक बच्चा पैदा होगा, उसकी विलादत होगी और तेरी हुकूमत को ख़त्म करेगा, बिल्कुल ऐसे ही। उसने पूरी कौम पर जासूस खड़े कर दिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी पूरी कौम बनी इसराइल पर जासूस खड़े कर दिए। कि जहाँ ताकि- पर कोई विलादत हो उसको बच्चे यहाँ को पे कत्ल- विलादत तो अगर बेटा है तो उसको ख़त्म कर दिया जाए, अल्लाह अकबर, ताकि वो मेरी हुकूमत का तख्ता उलट न सके। सुभान। इसी तरह से जो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम सामान में थे, जी तो फ़िरऔन वक्त ने, तागूत वक्त ने जी जी, कुछ जासूस रखे हुए थे अल्लाह अकबर, कि जो ये देखें जो ही विलादत हो सुभान तो अल्लाह, वो दौर के हुक्मरानों को जाके बताएं कि हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के घर में विलादत हो गई, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ताकि वो क्या किया जाए। वो जो हदीस नबवी है कि मेरे बाद मेरे जानशी 12 होंगे, सही, ताकि ये 11वें तो की तो शहादत हो गई, दुरुस्त से, अभी 12वां जो है ना वो ना आए, सही, ताकि हमारी तागूती हुकूमतें बच सके और हम इस अयाशी में ज़िंदगी अच्छे गुजार तरीके लें। से गुजार सके। अल्लाह। अगर ये आ गए
تو हमारी हुकूमत का तख्ता उलट जाएगा पलट जाएगा बिल्कुल। और वो अदालत कायम हो जाएगी पूरी दुनिया में। अल्लाह अकबर। लेकिन वो लोग ये जानते थे कि अगर 12वां आएगा तो उनके साथ ये मुश्किल पेश आ सकती है। ये आ सकती है अल्लाह अकबर। और ज़ाहिर है क्योंकि जो हदीस नबवी है उसमें तो कोई शक भी नहीं है कि वो बगैर वही के रसूल खुदा अपनी ज़बान खोलें। अल्लाह अकबर, बिल्कुल ऐसे ही। हुक्म इलाही है। सुभान अल्लाह। अभी चूंकि जब हम जिक्र करते हैं, अब अगर हम तारीख उठाकर भी देखते हैं और मुख्तलिफ वाक़यात हमारे सामने हैं, बनु अब्बास के वाक़यात देखते हैं, बनु उमैया के वाक़यात देखते हैं। जब बादशाह जो है या खलीफा जो है वो दुनिया से चला जाता है तो वो अपने जानशीन को, जो जानशीन है उसका इंतखाब करता है। और अब तारीख उठाकर देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसका जो जानशीन है वो बालिग है, बड़ा जो लड़का है वो सबसे बड़ा जो वो बालिग है। लेकिन जब हम इमाम अलैहिस्सलाम के हवाले से देखते हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम कमसिन भी हैं और इमामत का जो बोझ है उस कमसिन बच्चे के ऊपर है। ये कैसे मुमकिन है? क्या कोई बच्चा जो है वो इमामत उस इंतखाब हो सकता है या नहीं, मुंतखब हो सकता है या नहीं? असल में बात ये है कि देखें, परवरदिगार के आगे हमारे पास जो दलाइल हैं, जो बेहतरीन दलील है, वो है खुदा की किताब जी, यानी कुरान करीम। हम देखते हैं कि वही परवरदिगार जो बचपने में हज़रत याहया को एक किताब अता कर सकते हैं, या याहया खुज़िल किताब बिकुव्वतिन अल्लाह अकबर, व आताइनाहु हुक्म सबिया। सुभान अल्लाह। ऐ याहया, इस किताब को ताकत से पकड़ लो क्या बात, और हमने तुम्हें बचपन ही में हिकमत अता कर दी है। अल्लाह अकबर। या मसलन जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत होती है जी, तो वो जो लोग थे हजरत मरियम के पास आए सही, और कहने लगे, हारून की बहन तूने क्या किया? अल्लाह अकबर। तोहमत लगाई, तोहमत लग गई। बिल्कुल ऐसे, तो हजरत नहीं बोली, सही, इशारा किया, मुझसे ना पूछो, अल्लाह अकबर, इससे पूछो, ये बताएंगे। क्या बात, मेरी इस्मत की गवाही मेरा बच्चा देगा। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। तो फिर पंगूड़े में एक बच्चा है, नौजाद है, वाह वाह वाह, हजरत इमाम मेहदी अजल्लल्लाहु फरजहु शरीफ, ये तो 5 साल है ना, बिल्कुल ऐसे ही, तो वो नौजाद है, 2 दिन का बच्चा है, 3 दिन का बच्चा है, 4 दिन का बच्चा है, जो भी है, वो अपनी जुबान खोलते हैं फौरन ही। ये हैरान हो जाते हैं, ये बच्चा सुभान अल्लाह, जो पंगूड़े में, ये कैसे बोलेगा? अल्लाह अकबर, ये हमसे कैसे कलाम करेगा? सुभान अल्लाह। जी, तो फौरन ही बच्चे ने जुबान खोली, इन्नी अब्दुल्लाह अल्लाह अकबर, व आतानी अल किताबा व जअलनी नबिया, सुभान अल्लाह, मैं खुदा का बंदा हूँ अल्लाह अकबर, और मुझे परवरदिगार ने किताब अता की है सुभान और अल्लाह, मुझे नबी करार दिया है। है। क्या बात है, क्या बात है, वही परवरदिगार खालिक के कायनात जो एक बच्चे को पंगूड़े में उस बच्चे की जबान से सुभान अल्लाह, उसको नबी भी करार दे रहा है और किताब भी अता कर रहा है। सुभान अल्लाह, आया वही परवरदिगार एक 5 साल बच्चे को मंसूबे इमामत नहीं कर सकता? क्या बात है, बेशक बेशक, बहुत अच्छी, जी, बिल्कुल ऐसे ही, नहीं कर सकता? बिल्कुल ऐसे ही, कर सकता है। वही परवरदिगार जो 9 माह एक बच्चा माँ के बतन में होता है, सुभान अल्लाह, 9 माह, उसको 6 माह भी कर सकता है। बिल्कुल ऐसे, मिसाल आपके सामने है, बिल्कुल ऐसे, हजरत इमाम हुसैन अलैहि सलाम, या हजरत याहया, जी जी, बिल्कुल ऐसे ही, 6 माह की विलादत हुई ना, जी जी, तो वही परवरदिगार 6 माह को 6 दिन भी कर सकता है, क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, 6 घंटे भी कर सकता है, सुभान अल्लाह, 6 सेकंड भी कर सकता है। और ऐसे वाक़े हुए हैं तारीख में। सुभान अल्लाह, हजरत सुलेमान का वाक़या देखें आप, वो कैसे तख्त आया, बिल्कुल ऐसे ही है, तख्त बिल्किस। सुभान अल्लाह, देखें, ये मंसूब मिनल्लाह हैं जो आइमा हैं, बिल्कुल ऐसे ही, ना रिफरेंडम के जरिए से हैं ना वोट के जरिए से बिल्कुल हैं। ऐसे ही, इनको अल्लाह ही मुंतखब करता है सुभान अल्लाह, और ये अल्लाह के सालेहीन है। सुभान अल्लाह, इनसे परवरदिगार ने इनको जमीन का वारिस करार दिया, बेशक बेशक ऐसे ही है, और हुज्जत को खाली रखना भी नहीं है परवरदिगार ने। बिल्कुल ऐसे ही, वलक़द कतबना फी ज़बूर मिन बाद ज़िक्र अन्नल अर्ज़ यरसुहा इबादियस सालिहून, सुभान अल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही, कि परवरदिगार ने जमीन को वारसों के हाथ में अदा किया।
वो हुज्जत खुदा है। बेशक बेशक, उनमें से एक हुज्जत ये हमारे 12वें इमाम क्या बात है, क्या और बात है। 14वें सितारे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अभी जिस तरह से अभी एक जो हम बयान कर रहे थे कि जो कमसिनी में आपने मुख्तलिफ मिसालें भी दी हैं, और अगर हम तारीख ज़रा दूर नहीं बल्कि ख़ुद इमाम हसन अस्करी को भी देखें तो वो भी मेरे ख्याल से 7-8 साल की उम्र में ही उनको इमाम मिले, और इमाम जवाद अलैहिस्सलाम की जी जी, हवाले इमाम से बात तकी अलैहिस्सलाम को, तकी अलैहिस्सलाम की बात की जाती है कि वो भी कमसिनी में ही उनको इमामत मिली। जी हाँ। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि गैब के हवाले से कि जब इमाम अली अलैहिस्सलाम दुनिया में आते हैं, इमाम हसन अलैहिस्सलाम आते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आते हैं, उन जितने भी हमें इमाम दुनिया में आए किसी के बारे में ये बात नहीं हुई और ना ही वो गैब में गए। अब इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रोज़ शरीफ के हवाले से ये है कि वो जब दुनिया में आते हैं और कुछ सालों बाद वो गैबत कुबरा में चले जाते हैं। जी। इसके जो सबब है वो क्या है, क्या असबाब हैं कि इमाम को गैब में जाना पड़, यानी वजह क्या हो सकती है? देखिए इसमें ये है कि अगर हम सूरह हूद की आयत देखें, बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन, कि जो है ना परवरदिगार ने एक चीज़ बाकी रखी हुई है, जी। वो एक कीमती चीज़ है, जब ज़रूरत पड़ेगी जी। उस कीमती चीज़ का इजहार परवरदिगार करेंगे, उसको ज़हर कर देंगे। जी जी, ठीक है ना। सही। परवरदिगार ने अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ है। उसकी मिसाल मैं देता हूँ आपको कि देखें कि जो गैबत के असबाब हैं, क्योंकि वो हदीस नबवी, जी एक तो हम शुरू करते हैं, पहले मैं इशारा करता जाऊँ नाज़रीन को, जी, बिस्मिल्लाह। ये बताता जाऊँ कि हज़रत इमाम मेहदी अजल्लल्लाहु फ़रजहु शरीफ की विलादत हुई 15 शबान 255 हिजरी में, लेकिन 260 हिजरी से लेकर 329 हिजरी तक ये गैबत एक सुगरा है। जी बिल्कुल ऐसे। फिर 329 से लेकर आज तक ये गैबत कुबरा ही चल रही है, जो पर्दा गैबत में है। तो जब हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत हुई, जी तो जाफर कज़्ज़ाब जो इनके चचा थे जी जी हजरत इमाम मेहदी जी, अलैहिस्सलाम के, तो वो जनाजा पढ़ाने के लिए आगे आए। सही, उस वक्त हजरत 5 साल के थे ना, बिल्कुल ऐसे, यानी 260 हिजरी का वाक़या है। दुरुस्त। तो हजरत सफ़े चीरते हुए उनकी अबा से पकड़ा, उन्हें हटा दिया, कहा कि मेरे वालिद है, मैं खुद जनाजा पढ़ाऊंगा। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। तो हजरत ने जनाजा पढ़ाया। जनाजा पढ़ाने के बाद उसमें वो भी हुक्मरान वक्त भी मौजूद थे, अल्लाहु अकबर, लेकिन परवरदिगार ने उन्हें इतनी जुर्रत नहीं कि वो कदम उठाएं। बिल्कुल ऐसे, वहां ही से ये बच्चा जी, आफ्ताब अदालत मुंजी आलम वहां ही से गायब हो गए। अल्लाहु अकबर, यानी 260 हिजरी ही से जनाजा पढ़ाने के बाद गैबत सुगरा शुरू हो गई। बिल्कुल ऐसे ही, उसमें फिर नवाब अरबा थे, जो 4 नवाब थे, उनके साथ रबाबत रहे, और जो आखिरी नवाब के फौत होने के बाद, उनकी रहलत के बाद फिर गैबत कुबरा शुरू हो जाती है। तो इसलिए परवरदिगार ने, देखे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक टाउन कमेटी वाले हैं, शहरदारी वाले हैं मसला, जी जी, वो एक चौक पे लाइट लगाते हैं ताकि अंधेरा ना हो। सही, उन्होंने एक लाइट लगाई, शर पसंद पूरी दुनिया में मौजूद है, बेशक ऐसे ही, उन्होंने तोड़ दिया। उन्होंने फिर दूसरी लाइट चेंज कर दी, अल्लाहु अकबर, फिर तोड़ दी, फिर तीसरी वो तोड़ दी, अल्लाहु अकबर, चौथी लाइट आ गई, फिर वो तोड़ दी, अल्लाहु अकबर, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, जी जी, 10वीं, 11वीं तक वो तोड़ते रहे। क्या बात है, क्या बात है, 11वीं तक वो तोड़ते तोड़ते रहे। अभी शहरदारी वालों ने एक मंसूबा बनाया कि जो 12वां हम लगा रहे हैं ना, इसको छुपा के लगाएं, इसको ऐसे तरीके से लगाएं कि रोशनी पहुंचा सके सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और दुश्मन के शर से महफूज भी रह सके। क्या बात है, क्या बात है, सुभान तो अल्लाह, परवरदिगार ने 11 इमाम भेजे, 11 को शहीद कर दिया गया। सुभान अल्लाह, तो अभी परवरदिगार ने हिकमत के तहत क्या किया, इन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रख लिया, जी, ताकि 12वां जो है ना वो रोशनी भी पहुंचा सके सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
اور गायब में भी रहें। और गैब में भी रहें। क्या बात, क्या बात। यही सवाल हुआ इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से कि मौला हजरत तो गैब होंगे लेकिन हम उनसे कैसे मदद मांगेंगे सुभान या उनसे कैसे तो वसूल करेंगे। अल्लाह। तो हजरत ने बड़ी बेहतरीन मिसाल दी। जी। हजरत ने फरमाया कि देखें बादल के पीछे सूरज होता है। अल्लाह अकबर। अभी मौसम यहाँ पे भी ऐसा बना हुआ है कि बारिश भी हो रही है। जी जी दिन को भी बादल थे बिल्कुल, सूरज लेकिन नहीं। दिन को कोई रात नहीं कह रहा था। बिल्कुल ऐसे ही। हमने कहा आज का दिन है, सुभान। जो दिन गुजरा है दिन था, जी जी लेकिन सूरज भी फिर भी रोशनी पहुंचा रहा था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हजरत ने फरमाया इमाम मेहदी भी इसी तरह होंगे, क्या बात है जी, क्या बात। पर्दा गैबत में होंगे दुरुस्त है। लेकिन वो अपना नूर पहुंचाएंगे आप तक। सुभान अल्लाह। लेकिन शर्त ये है कि इन कुंतुम मोमिनीन, क्या बात है। जब वो मोमिन बन जाएं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हम जबान से इकरार न करें अल अजल, सुभान अल्लाह। दिल से करें, बल्कि हम दिल से चाहें। कल्ब से करें। बिल्कुल ऐसे। अब मिसाल देखें, अभी वैसे मिसाल भी देते हैं कि हम वाकई हम इमाम ज़माना के मुंतज़िर हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हम मुंतज़िर हैं इमाम ज़माना के। हम अगर अपने दामन में देखें अल्लाह वाकई हम मुंतज़िर हैं कि इमाम आ जाए। अल्लाह अकबर। शायद कम लोग होंगे, बिल्कुल ऐसे ही। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इमाम के हकीकी मुंतज़िरीन में। हकीकी मुंतज़िर हैं। क्योंकि वो जो हदीस है ना, अफजलुल इबादा इंतज़ारुल फरज, अल्लाह अकबर। और जो बेहतरीन इबादत है वो हज़रत के ज़हूर का इंतज़ार करना क्या है बात है, क्या कि कब ज़हूर हो जाए। बेशक बेशक। और मोनू का फरीज़ा क्या बनता है, हम क्या करें। वाकई हम कहते हैं अगर आज ज़हूर हो गया तो मैंने शादी नहीं की, अल्लाह अकबर। मैंने बैक लिया है, मैंने गाड़ी लेनी है, मेरा मकान नाकिस है, मैंने बड़ी बंगला डालना है, मैंने भी और बहुत से काम करने। मैंने और काम करने हैं। अगर मौला आ गए तो क़यामत आ जाएगी, अल्लाह अकबर। सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये मेरा फराड, ये मेरा हराम खोरी, मेरा सूद, ये मेरा लोगों को धोखा देने, ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा। जब अदालत की हुकूमत आ जाएगी और आदिल इमाम आ जाएंगे, सुभान अल्लाह, आफ्ताब अदालत आ जाएंगे तो सारा कुछ खत्म हो जाएगा। क्या बात है जी, क्या। मैं क्या इंतजार करूं। सुभान अल्लाह। ये झूठा दावा है। मैं खुद को कहूं कि मैं कितनी मर्तबा कुरान की तिलावत करता हूं और हदिया पेश करता हूं इमाम को, अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह। ये इमाम की तरफ से है। सुभान अल्लाह, मैं कितनी बार दुआ मांगता हूं, सुभान अल्लाह, जबान से कहता हूं आला जल, लेकिन दिल से कहता हूं फैलन आइए, अल्लाह अकबर। मोला मेरे काम नाकिस हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। बिल्कुल ऐसे ही। इसी में मसलत ये है कि क्योंकि हजरत ने ज़मीन को हुज्जत से परवरदिगार ने खाली नहीं रखना, इसलिए अपनी हिफ्ज़ अमान में मुंजी आलम को रखा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान। अभी क्योंकि आपने जाफ़र कज़्ज़ाब के हवाले से बात की तो यहाँ पर एक मैसेज है, वो कह रहे हैं कि आया जाफ़र को कज़्ज़ाब कह सकते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ़ रिवायत में हमने सुना है मुख्तलिफ़ उलमा से कि कज़्ज़ाब ना कहें बल्कि सिर्फ जाफ़र कहें तो काफ़ी है। देखें असल बात यह है कि क्योंकि उनको लक़ब ऐसा मिला वो झूठे थे, क्योंकि वो दावेदार थे इमामत के। सही। इमामत अगर रिश्तेदारी में होती तो फिर बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना, रिश्तेदारी में अक़रबा में इमामदारी नहीं है। इमामत जो है ना ये एक मनसब है, इलाही है, दुरुस्त है, जिसे परवरदिगार अता करता है। सही है। हालांकि आप देखें मसलन हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत इमाम हुज्जत तक जी जी कितने आइमा के फर्जंदान थे, कितने बेटे थे, लेकिन इमाम किन को, इमामत किन को नसीब हुई, मंसूब मिनल्लाह कौन हुए। बिल्कुल ऐसे ही। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे, 18 थे, 19 से कितने भी सुभान जी, उनमें से इमामत किन्हें नसीब हुई, एक को। दो को तो जी, इमाम हुसैन इमाम हसन को। बिल्कुल इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जी, दुरुस्त है, तो क्योंकि इन्होंने इदआ किया था सही। और ये हुकूमत के वक्त के साथ थे और इन्होंने फातिहा खानी करना शुरू कर दी और फातिहा लेना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। क्योंकि एक आसार ये था कि मौला ने बता दिया था इब्राहिम ने महज़यार को जी जी कि जो भी मेरा फातिहा लेगा या जो मेरा जनाजा पढ़ाएगा वो मेरे बाद मेरा जानशी होगा। बिल्कुल ऐसे ही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसलिए मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद का जनाजा पढ़ाया। बिल्कुल। और इसका लक़ब कज़्ज़ाब है क्योंकि वो झूठे थे। जी, न सिर्फ झूठे थे बल्कि वो
बल्कि वो अब्बासी तागूत के साथ साथ मिले मिले हुए हुए थे थे, बिल्कुल उनके साथ साजिश करके वो इमाम ज़मान अजल ताला फरोज़ शरीफ और को- खुद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने भी अपने भाई से इनको छुपाया हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अगर वो जहर होते तो फिर ये सबसे पहले जी जाफर कज़्ज़ाब भी उनके कत्ल करने के लिए तैयार होता, जी बिल्कुल दुरुस्त, क्योंकि इनको इक़्तिदार की जरूरत थी। बिल्कुल ऐसे ही है। इसीलिए वो अब्बासी जो हुक्मरान थे उनके साथ मिले हुए थे। जी इसलिए उनके साथ मिले हुए थे, सही। ये मसला था। अब यहाँ पर एक खातून हैं फातिमा हसनैन, वो कह रही हैं कि उनकी औलाद नहीं है तो उनके लिए खुसूसी दुआ करें, और अगर कोई दुआ है इस हवाले से तो वो भी बता दें। दुआ है, हमारा एक चैनल भी है। बहरहाल अगर औलाद उनकी नहीं है तो आज के दिन मैं दुआ भी करता हूँ। जी बिस्मिल्लाह। उसमें ये है कि हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के पास, हमारी बहन सुन रही होगी, जी जी को हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, उसने कहा कि मैं काफ़ी अरसा मुझे हो चुका है, मेरी औलाद नहीं है। जी तो हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने उनको एक अमल बताया कि वो अगर अमल अंजाम दें तो इंशाअल्लाह ताला औलाद हो जाएगी। तो फिर हज़रत ने बताया कि 2 अंगूठियाँ लें फ़िरोज़े की, जी जिसमें सूरह अंबिया की आयत है, रब्बे ला तज़रनी फ़र्दन व अंता खैरुल वारिसीन। ऐ मेरे अल्लाह, वो उस अंगूठी पर लिखवाएं जी जो हज़रत ज़करिया ने दुआ मांगी थी। तो फिर परवरदिगार ने उन्हें याहया जैसा एक नबी अता किया और बेटा अता किया। तो ये जब हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को बताया ये अमल, एक तो दोनों अंगूठी पहने, मियाँ और बीवी दोनों अल्लाह अकबर, माशाल्लाह। अंगूठी पहने, उस पे ये आयत लिखवाएं और हर वक्त ये अंगूठी पहने, लेकिन निजासत की हालत में ये अंगूठी उतारनी चाहिए क्योंकि कुरान की आयत है। जी और उसके बाद है कि सूरह नूह की आयत नंबर 11, 12, 10, 11, 12 10, 11, उसकी तिलावत करें जी और सुबह सवेरे 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करें अल्लाह अकबर। और 70 मरतबा सुबहान अल्लाह का विर्द करें। नहीं, सुबह नमाज के बाद, जी सुबह नमाज के बाद जो है। सुबह के नमाज के बाद, तो इंशाअल्लाह ताला जो है ना वो परवरदिगार इन्हें औलाद से नवाजेगा। जी यहाँ पर माजरत चाहता हूँ, एक और मैसेज है उनके बेटे के हवाले से। वो कह रहे हैं मेरा बेटा जो मरीज़ है उसके लिए आज की रात की जो आज की रात है उसके सदक़े खुसूसी दुआ कीजिए। मरीज़ है मेरे, उनका बेटा मरीज़ है, उनके लिए भी दुआ कीजिए। परवरदिगार बेहक के मोहम्मद वाले मोहम्मद उन्हें सेहत व सलामती अता करे इलाही आमीन, और उन्हें लिबास से आफियत पहना दे। इलाही आमीन। परवरदिगार बीमारी करबला का वास्ता और आज का जो दिन गुजरा है इसका वास्ता, इलाही आमीन, परवरदिगार उन्हें सेहत व सलामती अता करे और उनकी उम्र दराज करे। इलाही आमीन। बेहक के तो मौजूद की तरफ दोबारा वापस आते हैं इंशाल्लाह। मैसेजेस करते रहिएगा, मुख्तलिफ मैसेज आपकी तरफ से आ रहे हैं, इंशाल्लाह कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। आगा साहब भी माशाल्लाह बेहतरीन अंदाज से उन दुआओं को जिक्र कर रहे हैं, उन अज़कार को भी बयान कर रहे हैं जो आप लोग चाहते हैं। और आज के दौर में जिस तरह से दुआ के ज़रिए खुदा का कुर्ब हासिल कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मौलाना साहब भी मौजूद हैं। कॉल कीजिएगा, मैसेज कर सकते हैं तो मैसेज कीजिएगा। मौजूद की तरफ वापस आते हैं। जिस तरह से आपने अभी मुख्तलिफ बेहतरीन अंदाज से हमने उन चीज़ों को बयान किया। अब यहाँ पर एक सवाल है जो कि अगर आप देखते हैं तो दुनिया के किसी कोने से भी मुख्तलिफ जो दुश्मन हैं तशय्युअ के, उस सवाल को बहुत ज़्यादा उठाते हैं। न सिर्फ दुश्मन बल्कि ख़ुद हमारे जो दूसरे मुसलमान हमारे भाई हैं वो भी ये सवाल करते हैं कि कैसा हो सकता है कि एक मोमिन जो है या एक शख्स जो है या एक इमाम जो है इतनी लंबी उम्र, वो तुलानी उम्र जो है वो खुदावंद मुताल किसी को इतनी उम्र दे सके, ये कैसे हो सकता है? देखें, हम हवाला देते हैं कुरान करीम का। सूरह काफ में देखिए, अब असहाब काफ का जो वाक़या है, आज तक असहाब काफ जिंदा हैं। उनकी कितनी एज हो गई है? अल्लाह अकबर। या हज़रत खिज़र को देखें या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखें बिल्कुल ऐसे ही। कि जब ज़हूर होगा हज़रत हक़ का ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो तो हज़रत साथ ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और फिर इनके पीछे नमाज। नमाज अदा करेंगे। सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम ज़माना के इक्तदा में। जी जी जी। और कितनी हस्तियाँ वो हैं कि जिन्हें परवरदिगार ने हज़ार हज़ार साल एज अता की है। सुभान अल्लाह। हज़रत नूह की कितनी उम्र थी? 950 साल। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। बाज़ अंबिया की उम्र कितनी थी? 1100 साल। अल्लाह अकबर। अभी हज़रत इमाम मेहदी की एज इस वक्त तक 1182 साल तकरीबन हो चुकी है। सुभान अल्लाह। आया वो परवरदिगार जो आज तक असहाब कहफ को जिंदा रख सकता है,
تو وہ اس حجت کو زمین سے خالی رکھے گا؟ اللہ اکبر. نہیں، حجت موجود ہے اور لوگ ان سے بہرمند بھی ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. کافی بے شک. واقعات ایسے ہیں کہ بالکل ایسے لوگ امام زمانہ سے ملاقات بھی کر چکے ہیں، بے شک بے شک. لیکن انہوں نے اپنے شاگردوں کو روکا ہوا تھا ایسے ہی ہے. کہ کسی کو نہیں بتانا جب تک ہم زندہ ہیں، کسی کو نہیں بتانا کہ ہمارے استاد فلاں آیت اللہ بہجت کی مثال دوں میں بالکل ایسے ہی. کہ ان کی ملاقات ہوتی ہے امام زمانہ بے سے، شک بے شک. لیکن میرے بات بے شک بیان کریں اللہ اکبر. تاکہ لوگ پھر امام زمانہ کی معرفت سے ہٹ کے میرے پیچھے لگ جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسے انہوں نے بیان کیے بالکل ایسے ہی. اور کافی واقعات ہیں. دیکھیں خود امام زمانہ ایک صابن فروش کے پاس آتے تھے، بالکل ایسے ہی. ایک خیاط کے پاس، درزی کے پاس آتے تھے، اللہ اکبر. ایک تالا بنانے والے کے پاس آتے تھے. اللہ اکبر. کاش کہ ہم میں وہ چیزیں پیدا ہو جائیں کہ ہمیں بھی امام کی زیارت نصیب ہو جائے. الہی آمین الہی آمین. یہ ہے جو ہم پروردگار کی طرف سے دیکھتے ہیں. خدا جسے چاہے، جی اگر وہی خدا جو حضرت عیسیٰ کو بغیر والد کے پیدا کر سکتا ہے، جی وہی پروردگار جو حضرت آدم اور اما حوا کو بغیر والدین کے پیدا کر سکتا ہے، سبحان اللہ سبحان تو اللہ. وہی پروردگار اتنی ایج بھی عطا کر سکتا کیا ہے. بات ہے کیا بات ہے. بے شک بے شک. بہترین بہترین. جی سبحان اللہ. ابھی آخر میں کیونکہ ہمارے وقت میں دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے تو ایک سوال یو کے سے آغا علی رضا صاحب ہیں. انہوں نے سوال کیا کہ امام مہدی علیہ السلام کو ایک روایت کہہ رہے ہیں کہ مہدی نہ کہیں، اس حوالے سے بیان کریں، اور کہتے ہیں قائم کیوں کہتے ہیں. یہ دو سوال انہوں نے کیے، ان پر مختصر بیان کیجیے گا. دیکھیں، کیونکہ امام نے قیام کرنا ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ امام نے قیام کرنا ہے اور امام قیام کریں گے، ظلم کی حکومت کا خاتمہ کریں گے اور پوری کائنات پہ عدالت لے کے آئیں گے. کیا بات. اور قیام کے معنی اگر ہم دیکھیں تو قیام کے کیا معنی ہے؟ جی یعنی قائم. قائم کے معنی کیا ہے؟ استوار، محکم، مضبوط، جی جی. جو طاغوت کے مقابلے میں اس وقت بھی موجود ہیں، بے شک بے شک. وہ حاضر ہیں. بے شک. دیکھیں امام زمانہ ہر وقت حاضر ہیں. اس طرف میں اشارہ کروں، پھر آتے ہیں اس طرف مہدی کی طرف جی کہ جی، بسم مہدی اللہ. نہ کہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ جی دیکھیں کافی نام گزرے جن کے نام مہدی تھے. بالکل ایسے. آیا مہدی نہ کہنا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو عباسی خاندان کے گزرے ہیں ان کا نام بھی مہدی مہدی تھا، بالکل اس ایسا. لیے ہم نہ کہیں. بالکل ایسے ہی. بلکہ انہوں نے تو یہاں پر روایت میں مختصر بیان کرنا چاہوں گا، یہاں پر یہ بھی ہے تاریخ میں کہ انہوں نے جان بوجھ کے مہدی رکھا بھی اسی لیے. عباسی حکمرانوں میں سے 4 کے 3 ہارون مرخزی مامون تھے، اس نے اپنے بیٹوں کے نام مہدی پر رکھے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہی وہ مہدی ہے جو رسول خدا نے جس کا اعلان کیا ہے، جس کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرے 12 جانشین آخر مہدی ہے، تو اس نے اپنے بیٹوں کے نام بھی ایسے مہدی رکھے. یعنی قائم آل محمد سے مراد یہ ہے کہ جو آل محمد ہے نا، جی جی. ان کا جو قیام کرنے والے اور مضبوط قدم استوار رہنے والے کو قائم کہا جاتا بے ہے، شک بے شک. جو کسی بھی طاغوتی حکومت سے نہ ڈریں، صحیح بات. جو طاغوت حکومت کا خاتمہ کریں، جو ظلم کا خاتمہ کریں، جو سرزمین کو ظلم اور جور سے پاک کریں، یہ مراد ہے. اور دوسری بات ہے کہ مہدی کے معنی کیا ہیں؟ سبحان اللہ اے ہدایت یافتہ یا ہدایت کرنے والا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر اس کو فاعل لے آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہدایت کرنے والا. سبحان اللہ. اور اگر اس کو مفعول لے کے آتے ہیں تو ہدایت یافتہ. یافتہ ہے. اگر کہا جائے مہدی کے بارے میں دونوں چیزیں تو سبحان. دونوں صدق کرتی ہیں. کیا بات کیا بات. اگر خود ہدایت یافتہ نہ ہو تو دوسروں کو کیسے ہدایت کرے گا؟ جی جی بالکل ایسے ہی. یعنی ہادی خدا کی طرف سے، یعنی پروردگار نے ایسے ان کی فطرت میں ہدایت کو ڈالا ہے، سبحان اللہ. ایسے شستشو کی ہے کہ انہیں ہادی بنایا ہے. وہ قرآن کریم کی آیت بھی ہے، جی وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ ہم نے ان کو قرار دیا امام تاکہ یہ ہمارے امور کی، ہمارے احکام کی، جو احکام شریعہ ہیں، جی جی جو دین خدا ہے، سبحان اللہ. جو کتاب خدا ہے، اس کی کیا کریں؟
अम्र को लोगों तक पहुंचाएं, बेशक उनको हिदायत करें सुभान और सीधी राह दिखाएं। क्या बात। और यही हस्तियां हैं जो सीधी राह दिखाने वाली हैं, सुभान अल्लाह और यही सिरात मुस्तकीम है, बेशक बेशक अव्वल से लेकर आखिर तक सब के सब सिरात मुस्तकीम, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी और लोगों को हिदायत देने वाले जो हैं हिदायत ये देने हैं। वाले हैं बिल्कुल ऐसा और लोगों की रहनुमाई करने वाले हैं। इन्नल हुसैन मिसबाल हुदा वो सफीना व सफीनतुन निजात, सुभान अल्लाह, ये सब के सब सफीना निजात हैं क्या बात है, क्या बात है। और हिदायत का चिराग हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, बहुत बहुत हम आपको शुक्रगुजार हैं कि आप तशरीफ़ लाए। वाक़ई ये जो महफिल है, जिस तरह से इमाम को खुद जो जिक्र करना है, इसमें बहुत ज़्यादा सवाब जी, भी है। बिल्कुल। मैं आखिर में चाहता हूँ कि आप मुख्तसरन जो है वो आप दुआ कीजिएगा जितने हमारे नाज़रीन देखने वाले। मैं इसके बाद इंशाल्लाह कुछ अशार पढ़ना चाहूँगा इंशाल्लाह इमाम की दरगाह में भी, बारगाह में, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपना नाम भी उन लोगों में शुमार करूँ जी, बिल्कुल, जो इमाम के बारगाह में अपने जो उनका जो जिक्र को पढ़ते हैं। जी, तो पहले मुख्तसरन दुआ कीजिएगा ताकि मैं फिर अपने कलाम को पेश कर सकूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद इलाही बिअख़स सिफ़ाइक व बिइज़्ज़ जलालिक व बिनूर अंबियाइक व बिदिमाइ शुहदाइक व बिमनजात फ़ुक़राइक नस्अलुका ज़ियादतन फ़िल इल्म व सिहतन फ़िल जिस्म व तूलन फ़िल उम्र व बारकतन फ़िल रिज़्क़ व नूरन फ़िल क़ल्ब व नूरन फ़िल क़ब्र व तौबतन क़ब्लल मौत व रहतन इंदल मौत व मग़फ़िरतन बअदल मौत व निजातन मिनन नार व दखूलन फिल जन्नह बिरहमतिका या रहमर राहिमीन। रसूल खुदा फरमाते हैं कि बेहतरीन इबादत कसरत से हज़रत इमाम ज़माना के ज़हूर का इंतज़ार करना है। सुभान अल्लाह, सुभान अफ़ज़लुल इबादा इंतज़ारुल फ़रज, और बेहतरीन दुआ हमारी यही है कि ऐ परवरदिगार हमारे मुंजी आलम हज़रत इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजीर फरमा इलाही आमीन, और हमें हज़रत की ज़ियारत नसीब फरमा इलाही आमीन, और हमें हज़रत के यारान में से करार दे। इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा तकब्बल दुआ इन्नका अंता समीउल अलीम। वस्सलामु अलैकुम व बहुत रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह खुदावंद मुताल ने तौफीक दी, दोबारा इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो नाज़रीन करम, इंशाल्लाह जानते हैं विलादत ये महीना जो है बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ये वो महीना है जिसमें विलादतें ही विलादतें हैं। आप देखते हैं यकुम शाबान से लेकर 15 शाबान तक मुख्तलिफ अयाम में विलादतें ही विलादतें हैं। बीवी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की विलादत है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत है, जनाब गाज़ी अब्बास की विलादत है, जनाब ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की विलादत है, जनाब कासिम की विलादत है, जनाब अली अकबर की विलादत है। इन तमाम विलादतों को अगर हम देखते हैं, वाकई ये महीना जो है, इस महीने में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। कोई शहादत किसी इमाम की अगर हम देखें तो नहीं है। तो लेकिन करबला के साथ जो निस्बत है, शायर ने बहुत खूबसूरत अंदाज से बयान किया। शायर कहता है, आ गए अब्बास व कासिम अकबर व ज़ैनब हुसैन, आ गए अब्बास व कासिम अकबर व ज़ैनब हुसैन, हो गई तैयार पूरी करबला शाबान में। ये विलादतें ही हैं जिसकी वजह से हम आज यहाँ पर मौजूद हैं। ख़ुद इमाम ज़माना अजलल्लाह ताला फ़रज शरीफ की विलादत भी इसी महीने में है। ये महीना खुशियों का महीना है। इंशाल्लाह मैं यहाँ पर कुछ अशार जो है, शेर जो है, वो आपकी समातों को नज़र कर रहा हूँ। बड़ा हूँ मुंतज़िर वो मुंतज़िर, दिन मोतब देखूं, बड़ा हूँ मुंतज़िर वो मुंतज़िर, दिन मोतब देखूं, मैं मौला तेरे कदमों में नबी सा कसर देखूं, बड़ा हूँ मुंतज़िर वो मुंतज़िर, दिन मोतब देखूं। खुदाया वक्त दे मुझको दुआओं का असर पाऊं, ये मंजर देखने के बाद चाहे फिर मैं मर जाऊं, मैं काबे की
हंसी छत पर वो नरजिस का कमर देखूं बड़ा हूँ मुंतज़िर वो मुंतज़िर दिन में तब देखूं बड़ा हूँ मुंतज़िर वो मुंतज़िर दिन में तब देखूं तेरा एहसान होगा ए मेरे मौला तू आ जाए वो काबे की हंसी छत पे अलम गाज़ी का लहरा है आज़ादारी तेरे दादे की मैं अल्लाह के घर देखूं बड़ा हूँ मुंतज़िर वो मुंतज़िर दिन में तब देखूं मेरी आँखों को बीनाई की दौलत होता ऐसी मेरे हक में अकीदत से कोई दे दुआ ऐसी नजर तुम ही मुझे आओ मेरे मौला जिधर देखूं बड़ा हूँ मुंतज़िर वो मुंतज़िर दिन में तब देखूं मैं मौला तेरे कदमों में नबी सा कसर देखूं बड़ा हूँ मुंतज़िर वो मुंतज़िर दिन में तब देखूं जब इमाम आएंगे तो क्या क्या मोजज़ात नहीं होंगे जब इमाम आएंगे तो कैसे कैसे लोग जो इमाम को चाहने वाले हैं वो इमाम के साथ होंगे और ऐसे ऐसे लोग जो इमाम के बारे में जानते ही नहीं एक ऐसा ज़माना आएगा जैसे कि आगा साहब ने भी बयान किया कि आया हम दिल से इमाम को पुकार रहे हैं आया हम दिल से उस इमाम को जो पर्दे गैब में है उसको पुकार रहे हैं आप अगर देखें तो वाक़ई इमाम के चाहने वाले अभी आप देखते हैं पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं हर कोई ये कहता है कि मैं इमाम का चाहने वाला हूँ मैं इमाम का मुंतज़िर हूँ न सिर्फ अहले तशय्युअ में बल्कि अहले सुन्नत में भी एक अक़ीदा ऐसा भी है कि वो कहते हैं हम इमाम के इंतज़ार में हैं लेकिन रिवायत मुख्तलिफ है बाज़ कहते हैं कि शायद वो अभी दुनिया में ही नहीं आए बाज़ कहते हैं वो दुनिया में आ गए हैं लेकिन उनका ज़हूर होगा जबकि शियों में अगर देखते हैं तो वो यही कहते हैं कि इमाम की जो विलादत है वो हो चुकी है उनका ज़हूर होना बाकी है लेकिन अगर हम देखते हैं तो हम अपने आप को देखें हम कहाँ पर खड़े हैं हम किस जगह पर खड़े हैं अगर हम तकसीम करते हैं तो हमें यहाँ पर 5 ऐसे किस्म के लोग नज़र आते हैं कुछ ऐसे हैं जो अक़ीदती तौर पर शिया हैं नज़रियाती तौर पर शिया हैं कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ मुहिब हैं कुछ ऐसे हैं जो नासिबी हैं ये मुख्तलिफ अक़साम हैं कुछ लोगों के अभी हमने अपने आप को देखना है कि हम कहाँ पर खड़े हैं हम किस गुरोह में शामिल हैं आया हम सिर्फ मुहिब हैं आया हम सिर्फ मोहब्बत करने वालों में हमारा शुमार होगा या आया हम उस अक़ीदती या नज़रियाती तौर पर जो हमारा अक़ीदा है कि जिस तरह से कि हमारा ये अक़ीदा है कि जो इमाम में ज़माना अज्जल अल्लाह ताला फ़र्ज शरीफ है वो मनसूस मिन अल्लाह है खुदावंद मुताल ने उनका इंतखाब किया है उनकी इताअत हम पर वाजिब है ये हमारा अक़ीदा है या हमारा अक़ीदा ये है कि मनसूस मिन अल्लाह नहीं है सिर्फ मुहिब है बस क्यों हम मोहब्बत करते हैं क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रिश्तेदारी है उनकी औलाद में से है इस वजह से हम मोहब्बत करते हैं आया हम हमारा अक़ीदा जो है वो ऐसा है कि हम कहते हैं ठीक है खुदा मंद मुताल की तरफ से
انتخاب کیا گیا ہے، لیکن ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک نیک تقوی اور پرہیزگار ایک شخص تھا جس کو ہم مانتے ہیں، لیکن اس کی اطاعت ہم پر واجب نہیں ہے. اب یہ دیکھنا آج کی رات یہ ہے، نہ صرف آج کی رات بلکہ وہ پورا مہینہ، اس مہینے میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہے، کون سے گروہ میں ہمارا شمار ہوتا ہے. اپنے گریبان کو جھانک کر دیکھنا ہے، اپنے اعمال کو دیکھنا ہے. واقعاً جس طرح مولانا صاحب نے بتایا، جو اسباب بتایا غیبت کے، کہ جو امام کا جو غائب ہونا ہے، لیکن جب امام کا ظہور ہونا واجب ہے، کیونکہ خداوند متعال کی طرف سے وعدہ ہے کہ خدا نے اپنا وعدہ کہا ہے کہ امام جو ہے، امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ ان کا ظہور ہوگا. لیکن جو رکاوٹیں ہیں وہ کیا ہے، کس وجہ سے امام کا ظہور نہیں ہو رہا، یہ اب ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے، اپنے دل سے پوچھنا ہے، ہم نے اپنے قلب سے پوچھنا ہے کہ آیا امام کا جو ظہور ہے اس کی رکاوٹ میں ہمارا شمار تو نہیں ہوگا، ہماری وجہ سے کہیں ایسا نہیں کہ جس کی وجہ سے امام کا ظہور نہیں ہو رہا. واقعاً یہ دیکھنے والی چیزیں ہیں، اس کو سوچنے والی چیزیں ہیں. دل سے تو ہم شاید کہیں کہ ہم زبان سے بھی جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہم امام کے منتظرین میں شمار ہے، العجل العجل ہم کہتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے دل کی بات کو سننے کے قریب آتے ہیں تو ہمارا دل کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے. جس طرح سے آغا صاحب نے واقعاً بہت خوبصورت انداز سے انہوں نے بیان کیا کہ ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں لیکن دل میں ہم کہہ رہے ہیں نہیں، ابھی آپ کا ظہور نہ ہو تو اچھا ہے، ابھی میں نے بہت سے میرے کام باقی ہیں، میں گھر بنانا چاہتا ہوں، میں ابھی شادی کرنا چاہتا ہوں، میں گاڑی خریدنا چاہتا ہوں، میں پڑھنا چاہتا ہوں، میں اپنا اس مقام اور منزل پہ پہنچنا چاہتا ہوں جہاں پر مختلف لوگ ہیں. مختلف لوگوں کو دیکھ کر یہ اس کی سوچ ہے. لیکن اگر ہم اپنے مقام اور منزلت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو سب سے پہلے ہمیں اپنا احتساب کرنا پڑے گا کہ ہم کس مقام پر، ہمارا جو مقام ہے وہ کہاں ہے. قرب الہی حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا نہیں پڑے گا. اب یہ دیکھنا ہمارا کام ہے. خداوند متعال کی طرف سے جو شریعت نے جو ہمیں احکام دیے ہیں اس پر ہم نے عمل کرنا نہ کرنا وہ ہمارے اوپر ہے. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم رسول کے چاہنے والے ہیں، ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم امام حسین کے چاہنے والے ہیں، ہم امام حسن کے چاہنے والے ہیں، ہم پنجتن کے چاہنے والے ہیں. بعض دفعہ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اور بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کا واسطہ دے کر بھی مختلف لوگ دعا کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں. اور یہ شعبان کا مہینہ جب آتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فروج شریف کے چاہنے والے ہیں، ان کے منتظرین میں سے ہیں. لیکن جب ہم اپنے عمل کو دیکھتے ہیں دل سے یا زبان سے تو ہم اس کام کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، اس فعل کو ہم انجام دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اس فعل کو انجام دے رہے ہیں، اس برائی کو انجام دیتے ہیں، اس عمل کو انجام دیتے ہیں کہ جس سے یہ تمام شخصیات، یہ تمام ہستیاں ہم سے دور ہو جاتی ہیں. انشاءاللہ ایک اور میں منقبت پیش کرنا جا رہا ہوں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجر کے حوالے سے ہے، جو معجزات کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ کون کون سے معجزات ہوں گے، تو شاعر نے اسی معجزات کے حوالے سے گفتگو. شاعر کہتا ہے کہ معجزہ ایک یہ بھی ہوگا آپ کے آنے کے بعد. آپ کے آنے کے بعد کون کون سی معجزات واقع ہوں گی یہاں پر، کون کون سی معجزات جو لوگوں نے نہیں دیکھا. وہ شاعر کہتا ہے معجزہ ایک یہ بھی ہوگا آپ کے آنے کے بعد، دھوپ بن جائے گی سایہ آپ کے آنے کے بعد. اپنے سائے سے ڈریں گے آج کے شمر و یزید، اپنے سائے سے ڈریں گے آج کے شمر و یزید، ایسا بدلے گا نظارہ آپ کے آنے کے بعد، ایسا بدلے گا نظارہ آپ کے آنے کے بعد. آج کے دور میں دیکھتے ہیں واقعاً کوئی کسی کو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی اس کو نصیری کہہ رہا ہے، کوئی اسے غالی کہہ رہا ہے، کوئی اسے نمازی کہہ رہا ہے، کوئی کہتا ہے تو ماتمی ہے میں نمازی ہوں. شاعر نے اسی کو بیان کیا کہ جب امام آئیں گے تو اس وقت کیا سچویشن ہوگی.
وہ نمازی وہ نصیری اور وہ ہے ماتمی، وہ نمازی وہ نصیری اور وہ ہے ماتمی، ختم ہوگا یہ بھی جگرا آپ کے آنے کے بعد، ختم ہوگا یہ بھی جگرا آپ کے آنے کے بعد۔ وہ جو کہتے ہیں تماشا ماتم شبیر کو، وہ جو کہتے ہیں تماشا ماتم شبیر کو، خود بنیں گے وہ تماشا آپ کے آنے کے بعد، خود بنیں گے وہ تماشا آپ کے آنے کے بعد۔ وہ جو گڑے مردے ہیں قبروں سے اکھاڑے جائیں گے، جو گڑے مردے ہیں قبروں سے اکھاڑے جائیں گے، فیصلہ ہوگا فدق کا آپ کے آنے کے بعد، فیصلہ ہوگا فدق کا آپ کے آنے کے بعد۔ مسکرایا تھا فقط تیرا رجب کو اور پھر، مسکرایا تھا فقط تیرا رجب کو اور پھر، مسکرا اٹھے گا کعبہ آپ کے آنے کے بعد، مسکرا اٹھے گا کعبہ آپ کے آنے کے بعد۔ آپ کے آنے سے پہلے موت ہے یہ زندگی، آپ کے آنے سے پہلے موت ہے یہ زندگی، زندگی خود ہوگی زندہ آپ کے آنے کے بعد، ہے زندگی خود ہوگی زندہ آپ کے آنے کے بعد۔ حسن پر یوسف کے جب وہ آج تک حیران ہیں، حسن پر یوسف کے جب وہ آج تک حیران ہیں، مر ہی جائے گی زلیخا آپ کے آنے کے بعد، مر ہی جائے گی زلیخا آپ کے آنے کے بعد۔ کون روکے گا بلا تعمیر کرنے سے ہمیں، کون روکے گا بلا تعمیر کرنے سے ہمیں، فاطمہ زہرا کا روزہ آپ کے آنے کے بعد، فاطمہ زہرا کا روزہ آپ کے آنے کے بعد۔ آپ کا دربار شاعر سب تکلم کو کہیں، آپ کا دربار شاعر سب تکلم کو کہیں، کاش مل جائے یہ رتبہ آپ کے آنے کے بعد،
کاش مل جائے یہ رتبہ آپ کے آنے کے بعد. اپنے سائے سے ڈریں گے آج کے شمر و یزید. اپنے سائے سے ڈریں گے آج کے شمر و یزید. ایسا بدلے گا نظارہ آپ کے آنے کے بعد. دھوپ بن جائے گی سایہ آپ کے آنے کے بعد. آپ تمام ناظرین کرام کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں خوش رہیں, آباد رہیں. جو پریشانیاں آپ کی ہیں سب پریشانیاں دور ہو انشاءاللہ. خداوند متعال آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. انشاءاللہ دوبارہ کل ہم آپ کی خدمت میں ایک اور کارشناس کے ساتھ ایک اور مولانا کے ساتھ موجود ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.